नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि छोटे बच्चे थंब सकिंग करते हैं, जिससे कि पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, बहुत यत्न करते हैं, लेकिन फिर भी वो हैबिट छूटती नहीं। आइए जानते हैं कि थंब सकिंग क्यों करते हैं बच्चे और क्या तरीका है जिससे कि हम थंब सकिंग की हैबिट छुड़ा सकते हैं। तो इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर रीचा। डॉक्टर रीचा भांगे पिछले 16 सालों से डेंटल प्रैक्टिस में है, फेलोशिप कर रखी है रेस्टोरेटिव पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में। आइए मिलते हैं डॉक्टर रीचा भांगे से और बात करते हैं कि थंब सकिंग की हैबिट को कैसे छुड़ाया जा सकता है। वेलकम मैम, वेलकम टू अवर शो सरल बात। मैम, आज हमारा टॉपिक है वो है थंब सकिंग। बहुत सारे यस। बच्चे जो हैं उनको ये थंब सकिंग की हैबिट हो जाती है एंड पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं वो हैबिट छुड़ाने के लिए। सो हम्म। द फर्स्ट थिंग आई वांट टू आस्क इज, क्या थंब सकिंग एक प्रॉब्लम है? Doing thumb sucking, it is the first reflex. It is like when they are with the mother, like when the mother is breastfeeding, that is the first joy, or it is the first memory of the child. And breastfeeding has the hunger is also gone, and they are very close to the mother. So it is the happiest moment of the child. So he recalls it when he feels alone. He recalls it by doing thumb sucking. It is like he feels mother is very close and he's secure with thumb sucking. Yani ki he feels he's very close to the mother. And it is a natural reflex in the oral stage of child development. So and thumb sucking is also seen sometimes in the intrauterine life. यानी कि जब बच्चा womb में रहता है तब भी he does thumb sucking. बट टिल 1 or 2 years इट इज रियली नॉर्मल. उसके बाद अगर वो परसिस्ट करता है थंब सकिंग, देन इट इज एबनॉर्मल एंड वी हैव टू like pay attention ki why our child is doing so. Is there any problem with the psychology? And accordingly treat. Take a proper history of the child. कितने बार करता है वो, and why is he doing? Is there any psychological, is he afraid of some event in the house? Because I remember I had one patient in my clinic. His mother said ki when he saw his father having means he saw his father, like he was admitted in hospital, got heart attack, and he used to do like thumb sucking because his mother used to go to hospital and he used to feel alone. So it is that time he started doing thumb sucking, and he was very elder, like he was around 6 to 7 years, but still he started suddenly the thumb sucking habit. So maybe it is like sometimes depending upon the psychology, and now it is more common because both the parents are working or there are too many siblings. यानी कि अगर like there are more number of children, then sometimes in the crowd the child feels neglected, तो उसे थोड़ा सा अकेलापन महसूस होता है. तो दिस थंब सकिंग गिव्स हिम प्लेजर, यानी कि उसको बहुत खुशी महसूस होती है थंब सकिंग से. प्रोलॉन्ग बॉटल फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग से भी थंब सकिंग चालू हो जाता है. एंड इट इज नॉर्मल, यानी कि थंब सकिंग इज नॉर्मल टिल फर्स्ट 1 or 2 years. और प्री स्कूल के बाद अगर वो परसिस्ट करता है देन इट इज एबनॉर्मल. डॉक्टर, व्हाट इज द हाउ यू कैन स्टॉप? बच्चों को कैसे ये आदत छुड़ाए? बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट्स टू या गेट rid of दिस हैबिट। क्या करना चाहिए? वी कैन आस्क हिम कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन, व्हाट डू यू फील व्हेन यू फील, मींस व्हाट इज, means why you are doing. We can question him in obviously in soft language, because अगर हम उनको डांटेंगे बच्चों को ज्यादा तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा उनके ऊपर, and he will start doing thumb sucking even more. So we have to talk very softly with them and ask them and try to find out why is he doing. And one more thing, like means I have told mother, one of my patient, ki you show in mirror your child how he looks when he is doing thumb sucking. So when they see themselves in the mirror, and when they are doing thumb sucking, that time means the patient comes to know like how is he looking, so he's looking so bad, or he's looking so annoying to the other people when he's doing thumb sucking. So we can just tell him, but do not scold.
एंड इफ ही डजंट लिसन, एंड वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली उसको सिक्योर करे, लाइक इफ ही इज अलोन एट होम, द पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स or the grandparents should like give time to him. So that is one more thing. And see if he's hungry, he's feeding, like because 2 years से ये चालू होता है ना, so ये feeding time and all should be curtailed very nicely with by the mother. सो फीडिंग लाइक आफ्टर 2 hours अगर किया, या 3 hours वैसे। और ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग से भी ये थम सकिंग होता है, या बॉटल फीडिंग से। सो यू कैन स्लोली डू इन बिटवीन ब्रेस्ट फीडिंग, यू कैन स्टार्ट with bowl and spoon also, so that yeah, slowly you have to do weaning of breastfeeding and bottle feeding. अगर वो सुनते नहीं, या हमने बार बार बताया कि मत करो और वो नहीं करते, then we have to do the other type of treatment, that is we can use that chemicals which are sour and bitter. There are many chemicals. One famous is Femite, which is available, and there are many available, many trade names available on online. We can apply उस अंगूठा या जो उंगली वो मुंह में डालता है उस पे लगा के छोड़ दे सकते हैं। और जब वो अंगूठा अंदर मुंह में डालेगा तो उसको वो कड़वा लगेगा। पर ये जो मेथड है वो लिस्ट इफेक्टिव मेथड है, बिकॉज बच्चे बहुत होशियार भी रहते, तो वो जाके अपना अंगूठा या फिंगर्स धो के दे कैन पुट इट, यानी कि वो फिर से अंगूठा चूसना या उंगली चूसना स्टार्ट कर सकते हैं। देयर आर मेनी अदर फिक्स्ड अप्लायंसेस जो हम दांत के ऊपर चिपका सकते हैं, और ऐसा थोड़ा पैलेट के, यानी कि तालू जो रहता है अंदर का, ऊपर के दांत के पीछे जो एरिया है वहां पे हम उसको तालू बोलते हैं। तो वहां पे ऐसा मेटेलिक जो हमारा अप्लायंस रहता है उसका क्रिब एरिया रहता है, और ऐसे प्रॉन्ग्स रहते हैं। तो वो जो प्रॉन्ग्स रहते हैं तो दैट विल हर्ट, लाइक वी पुट दिस फिक्स्ड पैलेटल क्रिब एंटी थम सकिंग डिवाइस appliance inside the mouth. We cement it on the दांतों के ऊपर हम सीमेंट करते हैं, और जब वो उंगली डालने की कोशिश करता है या थम डालने की कोशिश करता है, तो वो जो प्रॉन्ग्स रहते हैं दे हिट द थम। सो विदाउट द अप्लायंस देयर इज फुल सक्शन, यानी कि पूरे लिप्स क्लोज होते हैं थम के ऊपर। तो विद दिस अप्लायंस द सक्शन इज, इट्स नॉट कंप्लीट, देयर इज सम स्पेस, एंड उसको वो चूसने में डिफिकल्टी होती है। और एक अप्लायंस रहता है, वो तालू के ऊपर हम ऐसे एक्रिलिक रोलर देते हैं। तो बच्चे को बताते हैं कि जब तुमको ऐसा हो कि यू वांट टू डू थम सकिंग, यू कैन जस्ट ऐसा रोल करे, वो एक्रिलिक रोलर रहता है, तो वो टंग से रोल करते रहना। देयर आर 1 or 2 रोलर्स which we give. A recent thing is you have hand finger puppets. You put them onto the fingers, toes, and like engage them in storytelling. That is also one current thing, which is all these puppets are available on online shopping, e-commerce websites. Then there is something called thumb home concept also. So usually we see that the यानी कि जब बच्चा अंगूठा चूसने लगता है तो वो चूसते चूसते सो भी जाता है। तो लाइक हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसे बैग रहती है जिसको हम थम का होम बोलते हैं या थम का घर। तो उस बैग में अपना पूरा हाथ डाल देते हैं, एंड वी टाई इट एट द रिस्ट, यानी कि जो हथेली रहती है वहां पे हम टाई करते हैं वो बैग। और उससे क्या होगा कि हम बच्चे को बता देते कि जब तुम सोओगे तब तुम्हारा हाथ भी सोएगा, यानी कि इट विल रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम डूइंग थम सकिंग ड्यूरिंग स्लीप। देन थम्स्टर्स आते हैं। ये सब अप्लायंसेस आर देयर विच वी यूज आउटसाइड द माउथ, यानी कि एक्स्ट्रा ओरल। So here it is like a glove like thing. We wear it on the thumb, यानी कि अंगूठे के ऊपर ऐसा वो ग्लव टेप का बना, ऐसे कॉटन मटेरियल का बना हुआ रहता है। सो अगर उसने वो अंगूठा डाला अंदर, तो उसको लाइक वो दैट गार्ड विल हर्ट हिम इनसाइड द माउथ। और अंगूठा चूसने से और एक बात होती है कि ये जो अपना फिंगर रहता है ना, वो ऐसा थोड़ा सा वेटी मॉइस्ट हो जाता है।
सो और उसके ऊपर दाग के निशान भी हो जाता है, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो वो जो थंब गार्ड रहता है जो मैंने अभी बताया, जो ऑनलाइन अवेलेबल है या कई कई डॉक्टर्स के पास दे हैव इन द ऑपरेटरी एंड दे गिव, एंड उनको वो पहनना है, और वो जो अल्सर्स या बाइटिंग मार्क्स जो आता है वो भी नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ दैट थंब गार्ड। एंड देर इज समथिंग कॉल्ड एल्बो गार्ड ऑल्सो विच इज अवेलेबल, यानी कि हम यहाँ पे ऐसे एल्बो के ऊपर डालते हैं, जिसकी वजह से ऐसे फ्री मूवमेंट ऑफ द एल्बो थोड़ा रेस्ट्रिक्ट होता है, तो हमारा हाथ यहाँ मुंह तक नहीं पहुंचता ऐसा। So this is all available on online, or sometimes the doctor keeps with him. Yeah. Initially, when the child is very small, we normally Hmm. see that at the age of maybe some months, 6 months, 8 months, Hmm. child Hmm. develops the habit of thumb sucking. इतने छोटे Hmm. बच्चे को कैसे हम रोके कि वो इनिशियली ही रोक दे तो वो आगे जाकर के हमको ये सब या करना ही ना पड़े। एक्चुअली जब वो हैबिट हम नोटिस करते हैं ना, तभी से उसको लाइक वी हैव टू टेल हिम, वी हैव टू हैमर ऑन द चाइल्ड्स माइंड दैट दिस इज नॉट द लाइक यू शुड स्टॉप दिस हैबिट फ्रॉम डे वन। वी हैव टू से कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आफ्टर मे बी 10 days एंड ऑल ही विल रियली थिंक, बिकॉज repeatedly if we tell the child then he will listen, certainly he will listen. If the child has some problem, like कोई कोई मेंटली चैलेंज्ड ऐसे जो बच्चे रहते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता, सो वी कैन डेफिनेटली गो टू अ साइकोलॉजिस्ट और डेंटिस्ट, so that there is some like conditioning of the mind is done by the doctors or the psychologist. Very small children, we have to like maintain their eating patterns very nicely, because जब बच्चे hungry रहते हैं, it is found कि mostly it is during hunger they do this, यानी कि उनको भूख लगती है तो वो अंगूठा चूसते हैं या उंगली चूसते हैं। And psychologically we have to see that he is not left alone, और कोई सीवियर प्रॉब्लम है देन साइकोलॉजिस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग ऑन दिस टॉपिक। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम नए टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे, आपको नई पर्सनालिटी से मिलवाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।